Hello guys. So we had continued with the chapter number 8 of class 9th. And the chapter is motion. And here is a numerical which we need to solve. A train is traveling at the speed of 90 km per hour. Okay, 90 km per hour. Okay, ये इसकी speed है. A train is traveling at the speed of 90 km per hour. Now traveling, its speed is 90 km per hour. Okay. Brakes are applied. Now जब इसकी speed 90 km per hour थी, at that time ये यहाँ पर थी, ठीक है? At that time something is done, यानी accelerated. Now accelerated with negative acceleration. है ना, ब्रेक लगाइए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है. अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ब्रेक लगाने की वजह से एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म प्रोड्यूस हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है. नाउ हाउ फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्राउट टू रेस्ट. यानी जब ये ब्रेक लगाई गई और अब इस पोजीशन पर इट स्टॉप्स, यहां पर ये स्टॉप हो जाती है, तो स्टॉप होने से पहले इसने ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक. नाउ दैट इज एस वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट हैज गिवन. यहाँ पर जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है उसको u से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमें दिया गया है. नाउ वी सी u इज द स्टार्टिंग वेलोसिटी दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, बट you see acceleration is given in meter per second square, so we need to change it to meter per second. How will we change this? We need to multiply it by 5/18. 18 से गया 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 meter per second. This is the starting velocity. And what will be the final velocity? Finally it become in the state of rest, then velocity will be 0 meter per second, right? तो ये दो चीजें तो हमें दी हैं, ये क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझना है. एंड अनदर थिंग वी हैव गिवन here is acceleration, and that acceleration is a negative acceleration of 0.5 meter per second square. And we now this is a uniform acceleration and is a straight line motion, so we know that all the three equations will be valid. And the three equations we have studied for the motion are, we always keep these equations in mind whenever we have to solve any numerical. We should know that v is equal to u plus at is the first equation of motion. Second is s is equal to ut plus half at square. These equations are very, very important, these two equations. The third one is 2as is equal to v square minus u square. Okay, so all the three equations we always need to remember whenever we have to solve these problems. And also keep it in mind that these equations are valid only for uniform acceleration and for the straight line motion. Okay, so this uniform acceleration is very, very important. So now what we need to find out? We need to find out what is the distance that it traveled before it stops. तो स्टॉप होने से पहले तक इसने कितनी डायरेक्शन डिस्टेंस कवर कर ली. We know that s is equal to ut plus half at square. There is nothing to worry about. हमें सब कुछ दे रखा है, हमें u दे रखा है, टाइम no we have to find out the time. Okay, because यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा कि कितने टाइम बाद वो रुक जाएगी, है ना, तो t नहीं दे रखा है, then this equation will not work here. But इसलिए हमें टाइम वाली इक्वेशन तो लेनी ही नहीं है.
यहां पर ये इक्वेशन लग रहा है कि काम आएगी। हमें v दे रखा है, a दे रखा है, u दे रखा है। नाउ वी कैन फाइंड s easily from the third equation. So this equation will be valid here. 2as is equal to v square minus u square, and here 2 into a की वैल्यू है minus 0.5 and s we need to find out, and v square is equal to 0. 0 का स्क्वायर भी 0 ही रहेगा। लिख देता हूँ, कुछ बच्चे पजल हो जाते हैं इसलिए मैं लिख देता हूँ कि 0 का स्क्वायर है तो 0 0 ही रहता है। कितनी बार भी उसको मल्टीप्लाई करो, u इज 25 का स्क्वायर, then multiply by 0.5 is -1 into s. -1 into s का मतलब है -s is equal to 25 का स्क्वायर, here minus is as it is and 25 का है 625, माइनस से माइनस कट जाएगा, s is equal to 625 मीटर। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस विल बी इन मीटर। So this way we can solve this numerical very easily. No, nothing to worry about it. This is a very simple, easy question that we solved here. Okay. So now we move on to the next question. So guys, another question we have, a trolley. Now अब हमें एक ट्रॉली दे रखी है, हाथ से खींचने वाला कार्ट टाइप, while going down an inclined plane. अब देखिए, अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन है और ये भी है कि inclined plane की तरफ को जा रहा है। यहां से ट्रॉली चल रही है, मूव कर रही है, has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है एंड दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर इट स्टार्ट्स। मान लो यहां से स्टार्ट, अब इसने बोला कि स्टार्ट होगी ट्रॉली, तो ट्रॉली जब स्टार्ट हुई तो स्टार्ट होने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। एक्सेलरेशन दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स पर सेकंड स्क्वायर में 2 सेंटीमीटर ये मूव करेगा। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर में मीटर, सॉरी हाँ मीटर बनाना है इसको, देन इट विल बी अराउंड 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सेंटीमीटर को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ऐसे चलेगा, ऐसे रहेगा। या आप मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, हम सेंटीमीटर पर सेकंड में ही सॉल्व करेंगे, या ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे करना चाहें कर लें। तो मीटर पर सेकंड करना है हमें। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर इट स्टार्ट्स। तो मान लो 3 सेकंड्स के बाद ये यहां पर पहुंच गई, दिस द टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड, और 3 सेकंड के बाद बोला है what will be its velocity. Now here we need to find the final velocity at this point. We have given with u is equal to 0 meter per second. We need to find out a is equal to कर ही लें इसको 0.02 मीटर। अब ये 0.02 क्यों किया मैंने? क्योंकि एक ये देखिए 0.2 सेंटीमीटर अगर ये 1 सेकंड स्क्वायर में चेंज होती है तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 100 से भाग करेंगे उतना मीटर आ जाएगा, तो 0.02 ऐसे आएगा। फिर ऐसे होता है ना, पॉइंट कब लगेगा? 2 नंबर्स के पहले पॉइंट लगेगा। तो एक नंबर तो हमारे पास है 2, इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 लगाना पड़ेगा, 2 नंबर से पहले 0, ऐसा होता है। तो आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये एक्सेलरेशन है 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी हियर। तो लेट अस कंटिन्यू। नाउ t is equal to 3 सेकंड, what we need to find is v,
Now, as we don't have v is equal to, what we need to find out, right? Let us see. V is equal to u plus a t. Now, I hope this equation will work here. U दे रखा है हमारे पास, A दे रखा है हमारे पास, T दे रखा है. Nothing to worry. Again, very simple question it is. V is equal to U तो है 0 प्लस A कितना है 0.02. पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना, नीचे को जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी, इनटू 3 सेकेंड्स. दैट विल बिकम 0 क्यों लिखना है हमने, 3 2 जा 6, 300.0. ओके, इतना मीटर आएगा. अब इसीलिए इन्होंने इसको सेंटीमीटर में दे रखा था, है ना. तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी है 3, हाँ नहीं ऐसे करना, सॉरी, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा. सेंटीमीटर में भी कर सकते थे इसको 3 सेकंड्स के बाद. नहीं, एक्सेलरेशन है हमारे पास, देखिए एक्सेलरेशन हमारे पास थी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर इसको 2 ही लिखते तो 6 मीटर हो जाएगा, या इसको हमने सेंटीमीटर में बदलना है 0.06, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है 100 से भाग करना पड़ता है. तो अब ये 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है, यहाँ पे पर सेकंड 0.06 मीटर पर सेकंड या 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, दोनों ही आंसर आ जाते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें ये चीजें दे रखी हैं, आप इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, नहीं भी बदलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 प्लस, अगर हमने नहीं बदला है 2 सेंटीमीटर ही रखा है, तो वेलोसिटी भी सेंटीमीटर में ही आएगी. 2 × 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे आ जाएगा की बात है. ठीक है, तो नो वरीज, इजी है क्वेश्चन ये भी. आगे देखिए, अगले क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करने हैं अब खुद. सो गाइस, हियर आर 2 क्वेश्चंस. वन, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमें दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है. ओके, और व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकंड्स, टाइम दे रखा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखी है, स्टार्ट होने के बाद ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी. स्टार्ट हुआ मतलब पहले स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी, u रहेगा 0, एक्सेलरेशन दी है, 10 सेकेंड्स टाइम दे रखा है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस एज डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो आपको सारे इक्वेशंस पता हैं, आपने सॉल्व करना है. दूसरा है, स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन. अगर हम स्टोन को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है, ऊपर की तरफ जाएगा विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. तो हमने जब थ्रो किया तो इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है u, जो कि जब ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे कम होती रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगी है ड्यू टू ग्रेविटेशन जो उसको रोकेगी. ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लगी है, दे रखी है. इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी ही होती है, 9.8 होती है, ये 10 दे रखी है यहाँ पे, तो वही है मतलब. इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी है, मोशन ऊपर की तरफ है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी. ठीक है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका गया है. तो व्हाट विल बी द हाइट इट अटेन, यहां तक पहुंचने के बाद ये रुक जाएगा और वहां से हटके वापस आएगा. तो यहां तक पहुंचते समय इसने कितनी हाइट गेन कर ली है, यानी ये डिस्टेंस इसने कवर की है, देन इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये पूछा गया है आपसे. व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, एंड नाउ टी आपको फाइंड आउट करना है. वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग. आप अपना दिमाग लगाओ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. अगर हो जाता है बिना किसी हेल्प के, ठीक है, अपने लिए, अपना आईक्यू बढ़ाने के लिए आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि आखिर
कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसा लगेगा, और इसको समझने का खुद ही प्रयास करना है कि क्या पूछा गया है। वैसे मैंने तो बता दिया, ये बताना नहीं चाहिए था, फिर भी चलिए इतना मैंने बता दिया आपकी जनरल नॉलेज के लिए। आप इसको सॉल्व करो, अब सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, और फिर मुझे बताओ आ गया आपको या नहीं आया। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, काफी है इतना आज के लिए। ओके, थैंक यू।